Now we'll discuss the design of asynchronous counter. In the previous 2-3 lectures, we'll discuss the working of the mod 4 up counter, asynchronous up counter, down counter using a positive edge triggering as well as a negative edge triggering. Now in today's lecture, we will discuss the how to design a asynchronous counter of any number of states. So we have for that there are basically 4 steps. Very first step is what, and I will explain the design step for design of mod 6 counter. So very first step is what? Determine the number of flip-flops. Determine the number of flip-flops required for count. So कितने flip-flops we need for our counter. So let us will take an example of mod 6 counter, how to design. So here mod 6 means what? 6 means 6 states. And there is very simple formula for that. That is 2 raised to n is greater than or equal to n. So n is your number of flip-flops or number of bits. And m is your total number of states. Total number of states. So for this example, the m is your 6. So approximately, so we need here n is equal to 3 means 3 flip-flops we require. Here you select jk or t flip-flops. Jk or t flip-flop. So select the type of flip-flop. Select type of flip-flop. The second step, this is your second, and third step is what? Design, prepare or design a logic for reset of the counter. तो काउंटर के लिए हमें reset logic डिजाइन करना है. For that purpose, draw a K-map and get the equation. For reset. Okay, draw K-map and get the equation for reset. So for this case, अभी हमें two table बनाना है reset logic के लिए. Mod 6. Mod 6 means how many states should be counted here? Mod 6 means 0 0, then 0 1 0, then 0 1 1. Here is a 0 1 1 0, then 0 1 1, then 0 1 0 0, and then 1 0 1, and 1 1 0, and 1 1 1. These are the 7 states for mod 8 counter. But here states are here what? 6 states only. And here we use a 3 flip-flops. 3 flip-flops use किया तो हमारे कितने स्टेट होंगे? 8 स्टेट्स होंगे. मीन्स यो 0 to 7. लेकिन हम mod 6 डिजाइन कर रहे हैं तो these are our valid state. 0 to 5 are our valid state. और इनवैलिड स्टेट कौन से हैं? ये दो हमारे इनवैलिड स्टेट्स हैं. नाउ मीन्स इसका मीन क्या है कि आफ्टर योर 5 स्टेट योर काउंटर शुड बी रीसेट. और हमें पता है हियर विल टेक द यूज ऑफ द असिंक्रोनस इनपुट क्लियर. तो क्लियर इज योर एक्टिव लो इनपुट. सो जब आपका क्लियर इनपुट लो होता है तो फ्लिप-फ्लॉप का आउटपुट 0 सेट होता है. तो हमें 5 के बाद काउंटर हमारा 0 होना चाहिए. तो यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं. इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं. यहाँ पे लिखते हैं Q1, Q2, Q3. यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट फॉर रीसेट. यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम पूरा लिखते हैं, लेट अस सी हियर हाउ वी राइट 0 0 0 0. पूरा लिखना है हमें 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1. तो ये अभी हमने ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट these are the valid states
दोनों आपकी इनवैलिड स्टेट्स है, इनवैलिड। तो अभी यहाँ इसके बाद काउंटर शुड बी रीसेट। इसके बाद अगर काउंटर रीसेट होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो इसलिए पहले हमारा रीसेट जो इनपुट है, रीसेट जो हमारा क्लियर इनपुट है फ्लिप फ्लॉप का, वो क्या होना चाहिए, पहले हाई रहेगा। इसके बाद हाई रहेगा मीन्स आपके सब स्टेट्स आ जाएंगे बराबर। इसलिए हमने आउटपुट क्या रखा, हाई रखा। देखिए हाई रखा। बाद में हमने 0 किया कि इसके बाद हमारा काउंटर 0 हो जाना चाहिए। 0 के बाद वापस हो में ये 5 स्टेट आएंगे, वापस से हो 0 1 2 3 4 5 काउंटिंग विल बी अगेन, इट विल बी स्टार्ट। तो अभी नाउ विल प्रिपेयर के मैप फॉर दैट। अभी हमें के मैप बनाएंगे इसके लिए इक्वेशन फाइंड करेंगे रीसेट के लिए। ये आपका R है, तो ये आपका 3 वेरिएबल के मैप आएगा। 1 के मैप, everybody is familiar with the K map, how to draw. I write here Q1, Q2 and Q3. ये 0 0 है, 0 1 1 1 0 0 1 0. Everybody is familiar with this decimal points, so no need to explain here. So फिर यहाँ पे 0 से 5 तक आपका आउटपुट क्या है, हाई है। 0 से 5 तक आपका आउटपुट क्या है, हाई है, और यहाँ पे 0 है। तो आपका ग्रुपिंग कैसे बनेगा, ये आपका फर्स्ट कॉर्ड हो गया और यू विल गेट अ सेकंड कॉर्ड हियर, दिस वन। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, दिस योर R मींस योर क्लियर इनपुट, ये आपका क्लियर है। कैसे लिखेंगे आप, CLR इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, फॉर दिस कॉर्ड व्हाट इज द वैल्यू। ये कॉर्ड के लिए देखिए आप क्या आएगा, ये लुक एट हियर व्हिच वैल्यूज आर कॉमन हियर फॉर दिस कॉर्ड के लिए। प्रॉपरली देखिए, ये आएगा आपका Q2 बार प्लस ये Q2 बार आता है इस कॉर्ड के लिए, इसके लिए आएगा Q1 बार। तो ये हमने डिमोरल्स यूज किया तो क्या हुआ, Q1 Q2 बार। ठीक है, नाउ विल ड्रॉ द डायग्राम। ये होने के बाद हमें क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। सो आई विल ड्रॉ अ डायग्राम, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स। तो अभी हम फ्लिप फ्लॉप्स, यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप्स है आपके, 3 फ्लिप फ्लॉप्स ड्रॉ कर लेंगे हम। देखिए आई विल ड्रॉ 3 फ्लिप फ्लॉप्स एंड जस्ट वी अप्लाई दिस लॉजिक हियर फॉर द क्लियर इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। तो ये हमारा J1 K1, ये है आपका Q1 बार, J2 K2, Q2 Q बार, J3 K3, Q3 बार। तो ये हमारा अप काउंटर है। सो हियर वी रेफरिंग द नेगेटिव एसिडरी, दिस इज योर क्लॉक एंड दिस योर क्लियर इनपुट फॉर एवरी फ्लिप फ्लॉप। ये क्लियर इनपुट है आपका, सबका क्लियर इनपुट है ये क्लियर। ये कहाँ जाएगा, ये 5 स्टेट होने के बाद ये देखो हमें इक्वेशन मिला है क्लियर का, आपका फ्लिप फ्लॉप काउंटर रीसेट हो जाएगा। तो अभी हर एक ये जो है, ये तीनों के जो क्लियर इनपुट्स है, यहाँ पे हम ये लॉजिक लगाएंगे। नैंड गेट बोला है यहाँ पे, नैंड गेट, ये नैंड गेट है। नैंड गेट के लिए इनपुट क्या है, नैंड गेट के लिए इनपुट है आपका, तो देखिए इनपुट आपका नैंड गेट के लिए ये Q2 Q3 यहाँ पे आएंगे। ये देखो हमने रीसेट लॉजिक लगाया है इसके लिए। ये तीनों के इनपुट्स जो है J3 K3 J2 K2 J1 K1, ये हमें लॉजिक 1 को लगाना है। यूजुअल प्रोसेस हमें फॉलो करना है। ये लॉजिक 1, ये भी लॉजिक 1। अभी यहाँ पे क्लॉक देना है, हमारा अप काउंटर है। नेगेटिव एसिडरी यूज करें तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इसको क्लॉक है। ओके, दिस इज द सर्किट डायग्राम। तो पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप फाइंड आउट किए, उसके बाद हमने कौन सा टाइप का फ्लिप फ्लॉप यूज करना है वो देखा, उसके बाद हमने रीसेट लॉजिक प्रिपेयर किया, फिर उसके लिए के मैप ड्रॉ किया। के मैप पे जो इक्वेशन आया वो इक्वेशन के हिसाब से हमने डायग्राम ड्रॉ की, उसका जो क्लियर इनपुट है उसके लिए इक्वेशन था आपका Q1 Q2 बार। सो Q1 Q2 बार, सो इट शुड बी योर Q1 Q2 बार। तो हमें क्या है, Q1 चाहिए यहाँ पे, ये Q1 है, ये
और ये आपका है Q2 बार। दिस इज नथिंग बट योर डिजाइन ऑफ असिंक्रोनस काउंटर। ये मॉड 6 का एग्जाम्पल है। ओके।